I am of the firm belief that judicial infrastructure, both in terms of personal and physical infrastructure, needs urgent attention. With the expanding economy and growth in population, the caseload is rising alarmingly. There is a severe gap between the existing infrastructure and the projected justice needs of the people. The environment of some courts, in some district courts, is such even lady advocates feel apprehensive about entering courtrooms, let alone female clients. Courts, being temples of justice, should be welcoming and carry the requisite dignity and aura. To standardize and improve judicial infrastructure, I have been focusing on the creation of special purpose vehicles, namely National Judicial Infrastructure Authority and the State Judicial Infrastructure Authorities in the lines of NALSA and SALSA. Let me make it very clear, this is not about funds. I must acknowledge that the Union government has been making reasonably budgetary allocations through its centrally sponsored schemes for this purpose. The data since the inception of the scheme since 1993 to 94 suggests that allocated funds remain underutilized due to procedural difficulties. The time has come to move on from the present ad hoc committees to more streamlined, accountable and organized structure. I want to dispel apprehensions emerging from certain sections on this proposal. The proposed authorities are not aimed at usurping the powers of any government. The proposed authorities will have representation from all the stakeholders. It must, however, be acknowledged that it is the judiciary which understands best its own needs and requirements. Hence, the present proposal aims to bring infrastructure development under the supervision of special purpose vehicles to be headed by the respective Chief Justices and involve the representatives of central and state governments. Another important factor in promoting access to justice is filling up of the vacancies, increasing and sanction strength of judges. Yesterday, at the Supreme Court Bar Association event, the learned Attorney General Sri K.K. Venugopal also highlighted the issue of vacancies and pendency, expressing concern about the large number of vacancies at different levels in the judiciary. He said, I quote, "How do you expect that we would be able to even make a dent in the pendency of cases?" Unquote. As on today, out of 1,104 sanctioned posts of High Court judges, there are 388 vacancies. From day one, it has been my endeavor to fill up judicial vacancies. We have made 180 recommendations for appointing in various courts during the last 1 year. Out of this, 126 appointments has been made. I thank the Government of India for clearing the names. However, 50 proposals are still waiting for approval. The High Courts have sent 100 names, which is yet to reach us. The data reveals the earnest efforts being made by the judiciary to fill the vacancies. I would like to urge the Honorable Chief Ministers to extend wholehearted cooperation to the Chief Justices in their endeavor to strengthen the district judiciary. When we last met in 2016, the sanction strength of judicial officers in the country was 20,811. Now it is 24,112, which is an increase of 16% in 6 years. On the other hand, in the corresponding period, pendency in district courts have gone up 2 crores 65 lakhs to 4 crores 11 lakhs, which is an increase 54.64%. This data shows how inadequate the increase in the sanction strength is. Unless the foundation is strong, the structure cannot be sustained. Please be generous in creating more posts and filling the vacancies so that our judge population ratio is comparable to advanced democracies. As for sanction strength, we have just around 20 judges for 10 lakh population, which is alarming. Another important aspect of Indianization is inclusivity. The judiciary, as well as every other institution of our democracy, must mirror the social and geographical diversity of the country. I am receiving many representations for introducing local languages in the proceedings before the High Court. I think the time has come now to revisit the demand and take to its logical conclusion. The practice of law before constitutional courts should be based on one's intelligence and understanding of law
and not mere proficiency in language. The concept of access to justice in India is much broader than simply providing lawyers for representation before courts. I am proud to state that India has one of the best free legal aid services in the entire world. Under the able leadership of Brothers Justice Lalit, legal service authorities are doing a tremendous job. I thank the Government of India and other state governments for providing active support in this area. Brother Justice Kanvilkar is contributing immensely, strengthening the Supreme Court legal service by deploying modern technology. Brother Justice Chandrachud is adding huge value to the e-courts project. His efforts will ultimately lead to much needed modernization of the Indian judiciary. Brother Justice L. Nageswara heading a committee of artificial intelligence, whose work I believe is going to revolutionize the way the judiciary functions. I thank each one of them. Honorable Chief Ministers and Chief Justices, all that I can say is that it is the active collaboration based on our collective wisdom that can take us forward. Please remember, it is only the judicial process that is adversarial, not the judges or their judgments. We are merely discharging our constitutionally assigned role. Judgments are meant for delivering justice and should be seen as such. Let us work together for fulfilling the constitutional mandate. As Aristotle once said, law should govern and those in power should be servants of the law. I am sure the thoughts and concerns that you are going to share in this conference today will be placed before the Government of India. I am confident that the points which are actionable at the level of Government of India will receive deserving attention. I take this opportunity to thank the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovindji, who always been a pillar of support for us. Being an accomplished lawyer himself, he has a practical understanding of the Indian legal system and has always been extremely supportive for all our endeavors. It was at his behest that the project of translating Supreme Court judgments to Indian languages was initiated. He graciously took out time to interact with us yesterday night over a dinner. We are grateful for the same. I am very happy that the Honorable Prime Minister Modi ji has taken out time for his busy schedule to share his thoughts on this occasion. He had readily agreed to lend his support to the legal awareness mission in the interest of increasing accessibility. I thank him for his continued support to the judiciary. My dear friend, Mr. Rijuji deserves special thanks, promptly responding to my suggestion to bring together the Chief Ministers and the Chief Justice for this event. I am very happy to work with him, such a young and energetic law minister who is keen on improving the legal system in India. I would like to thank my brother and sister judges of the Supreme Court who have given their full support to this event. I would like to especially thank Justice Lalit, Justice Kanvilkar, who spared no efforts to make this event a grand success. My best wishes to all the Chief Ministers, Lieutenant Governors and the Chief Justices who have gathered here. I thank them for travelling to the national capital despite the short notice and their busy schedules. Your continued support is highly appreciated. I would like to thank the Secretary General, the Registrars of the Supreme Court and other staff, Secretary of Ministry of Law and Justice and other officials of the Ministry who work day and night to ensure the success of this event. I am sure all your efforts will bear fruit and I wish the conference as a great success. I will be failing my duty if I do not recall the invaluable services rendered by all in the most tiring times of the pandemic to keep the flag of the judiciary flying high. I offer my sincere condolences to the families of those who left us during this period. Before I end, I would like to quote a few words of Mahatma Gandhi ji. I quote, "Man becomes great exactly in the degree in which he works for the welfare of his fellow men." Unquote. It is in this spirit that we must strive to achieve the highest degree of greatness for our institutions. This is the befitting tribute that we can pay to our freedom fighters in these 75 years of the independence. Thank you very much for giving this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी के गौरवशाली नेतृत्व में
न्यू इंडिया नागरिकों की आकांक्षाओं का भारत बना रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अब सबका उत्साह बनता जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में सर झुकाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी न्याय सबके लिए के प्रति हृदय से समर्पित हैं और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए भी फिक्रमंद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। Honorable Chief Justice of India, Sri N.V. Ramanna ji, जस्टिस श्री यू ललित जी, देश के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल जी, राज्यों के सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच कुछ पल बिताने का अवसर मिला है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस पहले भी होती आई है और उनसे हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ नए विचार भी निकले हैं। लेकिन ये इस बार ये जो आयोजन अपने आप में और भी ज्यादा खास है। आज ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय में हो रही है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ, देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए।
अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय में विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है। और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो एथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है।
इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है। अभी मैंने एक टोली बनाई है, वो उसका अध्ययन कर रही है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा सीजेआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। नहीं, उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं, दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है। सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को, 1450 कानूनों को हमने खत्म किया। लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, काल बाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी। साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है। देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं।
और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है। इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं। शायद जजीज को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है, क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था। अब यहां बैठना मौका आ गया है तो यहां से आता रहता हूं। तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूं। साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है। मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा। आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है। इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके, जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके। बद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। संविधान की और हाई कोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए। इसी तरह न्यायालयों में और खासकर स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। हमारे समाज में तो मध्यस्थता के जरिए विवादों के समाधान की हजारों साल पुरानी परंपरा है। आपसी सहमति और परस्पर भागीदारी, ये न्याय की अपनी एक अलग मानवीय अवधारणा है। अगर हम देखें तो हमारे समाज का वो स्वभाव कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है। हमने हमारी उन परंपराओं को खोया नहीं है। हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। और जैसे चीफ साहब ने ललित जी की तारीफ की, मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, हर राज्य में गए इस काम के लिए, और सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में गए। साथियों, मामलों का कम समय में समाधान भी होता है, न्यायालयों का बोझ भी कम होता है और सोशल फैब्रिक भी सुरक्षित रहता है। हमने इसी सोच के साथ संसद में मीडिएशन बिल को भी एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी पेश किया है। अपनी रीच लीगल एक्सपर्टाइज के साथ हम मीडिएशन से सॉल्यूशन की विधा में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हम पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्राचीन मानवीय मूल्यों और आधुनिक अप्रोच के साथ इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सभी विषयों पर आप सब विद्वज्जन विस्तार से चर्चा करके, मंथन करके उस अमृत को लाओगे जो शायद आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो नए आइडियाज निकलेंगे, जो नए निष्कर्ष निकलेंगे, वो नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार
आप सबके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के न्याय व्यवस्था के लिए सरकारों ने जो करना होगा, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो भरसक प्रयास करेगी ताकि हम सब मिलकर के देश के कोटि कोटि नागरिकों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके और 2047 में देश जब आजादी के 100 साल मनाए तब हम न्याय के क्षेत्र में भी और अधिक गौरव के साथ, और अधिक सम्मान के साथ, और अधिक संतोष के साथ आगे बढ़े। यही मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी प्रेरणा के लिए। और अब हमारा अनुरोध है माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी से कि कृपया आभार प्रकट करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति NV रमन्ना जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, माननीय श्री न्यायमूर्ति UU ललित जी, राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल एवं प्रशासक, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के कानून मंत्री, गणमान्य व्यक्तियों, देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। उद्घाटन सत्र के समापन पर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं इस सम्मेलन में अपना बहुमूल्य समय देकर उपस्थित होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे आयोजन को अपना गरिमामय नेतृत्व देकर आपने कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म पर अपना विश्वास एक बार पुनः व्यक्त किया है। महोदय, अप्रैल 2016 में आयोजित पिछले सम्मेलन के दौरान आपने न्यायपालिका में आम आदमी के भरपूर विश्वास का उल्लेख किया था। महोदय, तब आपने अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने पर जोर दिया था। इस दिशा में 1468 अप्रचलित कानूनों को खत्म करने में आपके नेतृत्व वाली सरकार कामयाब रही। महोदय, आपने अदालतों में लंबित मामलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी। यद्यपि लंबित मामले खत्म नहीं हुए हैं, तथा आप केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एवं न्यायपालिका एक साथ मिलकर इसके लिए काम कर रही हैं और आज के तकनीकी सत्रों में इस मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके नेतृत्व में परिकल्पना की गई डिजिटल इंडिया ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके इस गंभीर समस्या का भी समाधान निकालने में आज न्यायपालिका और कार्यपालिका के यहाँ उपस्थित विद्वत जन सक्षम होंगे। 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद